morning, students. Welcome back. Today we'll be dealing with some questions based on the simple interest on a certain sum of money at 10% per annum is rupees 6,000 in 2 years. Find the sum. The sum मतलब क्या होता है? Principal. The amount at the end of third year, and as we get the amount, so they will be asking for compound interest in the third question. So we are given with what? We are given here rate. We are given here SI. The very important thing, see this question very clearly. The simple interest on the sum of money is 10%. So this is simple interest. We will be using formula of simple interest to find the sum of money first. Sum of money means principal. So we will be using simple interest. We know that principal is equal to SI into 100 by R into T. So we have used here this formula. We have got the sum of money. The first part of our question was the sum of money, which we have got principal as 30,000. Now next part asked us about the amount after the end of third year. So since we have got the rate, since we have got the principal, and since we have the timing, that is 3 years, we will put the formula again. A is equal to P into 1 plus R by 100 whole to the power n, and this is how we will get. The last part has asked about compound interest. So everyone knows compound interest equal to amount minus principal. We'll put this and simply get the answer. Now see this question. Rupees 16,820 is divided between Ram and Shyam, both aged 27 and 25 years respectively. Their money is invested at 5% per annum compound interest in such a way that both receive equal money at the age of 40 years. Find the share of each out of 16,820. तो देखिए एक अमाउंट है 16,820 का जो अमाउंट है वो दो बच्चों ने आपस में जो है इन्वेस्ट किया, और कब इन्वेस्ट किया था? एक 27 साल का जब था और एक जब 25 साल का था. तो वंस व्हेन दे गेट 40 years दिस मनी विल बी बैक टू देम विच हैज़ बीन अमाउंटेड. ओके, सो द क्वेश्चन सेज फाइंड देयर शेयर्स. सो हाउ टू फाइंड द शेयर? This question is very important question. Let the share be. So we know that math is all about imagination. So first part we have taken the share of Ram, that we have taken as x. So obviously अगर मेरे आपके पास आपके और आपके भाई के पास मिला के 100 रुपये हैं और आपके 25 रुपये हैं, तो आपके भाई के पास कितना बचेगा? तो वो 100 माइनस 25. तो वही चीज़ यहाँ क्या है, ये टोटल सम है, आपका x है, उसको मैंने माइनस किया है, तो हम लोग को इस बंदे का हिस्सा मिल जाएगा, सैम का. ठीक है, तो फॉर रैम हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग रैम को क्या क्या चाहिए? प्रिंसिपल उसका x है, रेट 5% है, n हम लोग को कितना है 40 माइनस 27. इस कॉन्सेप्ट को समझिए, n 40 माइनस 27. क्वेश्चन क्या बोलता है, वो 40 ईयर्स जब होगा तब वो सम उसको मिलेगा. अभी वो 27 ईयर्स का है. ठीक है, तो 40 माइनस 27 कितना होगा 13 ईयर्स. तो हम लोग का वैल्यू n हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग उसमें पुट करेंगे वैल्यू को, और हम लोग को मिलेगा रिलेशन. ठीक है, इस रिलेशन को माइंड में रखिए, क्योंकि इसी रिलेशन से आगे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे. और सैम पी हम लोग का क्या है, प्रिंसिपल, वो हम लोग माइनस किए थे 16,820 जो टोटल शेयर है उसमें से x को. ठीक है, और रेट यहाँ भी 5% है, और n हम लोग का जो है 40 माइनस 25 ईयर्स का था ये, इसका 15 ईयर्स हो गया. अब देखिए हम लोग को कहा क्या गया है, क्वेश्चन में वापस आते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है, बोथ रिसीव इक्वल मनी एट दी एज ऑफ 40. So since we have calculated both the part in the age of 40, so equal money, that means both of them will have same amount. So Sam का amount कितना हो गया था, इतना, और इसका amount कितना था, इतना. So this both will be equal. So since this both will be equal, we will solve this and we'll get the value of x. ये दोनों इक्वल है. अब ये चीज़ को आप लोग समझ रहे होंगे, ये 13, ये वापस यहाँ 2 कैसे हो गया. ये देखिए ये इक्वल टू इस पर अगर डिवाइड होगा, और जब सेम रहता है उस पर पावर सेम बेस है और पावर देखिए है, तो हम लोग उसको डिवाइड कैसे करते हैं, और जो है वो माइनस हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ माइनस हो गया 15 माइनस 13, तो 2 पावर बच गया. ठीक है, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ x. ये सो x मिल गया. अब हम लोग इसमें माइनस कर देंगे, सेकंड पार्ट जो है वो भी मिल जाएगा. तो राम का कितना हो गया 8,820 और सैम का 8,000. ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चंस देखिए काफ़ी चालाकी से जो है बोर्ड्स क्वेश्चन बनाता है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा. ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन दे दिया है, जैसे कि हम एक क्लू हम समझाने की कोशिश की, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस SI का वैल्यू आपको दे देगा, तब आपको कैसे सॉल्व करना है. आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, और SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई 100. ठीक, तो इससे एक रिलेशन आपको बनाना पड़ सकता है इस फॉर्मूले से. ठीक है, इट कैन बी रिलेशन विद एनी, इट कैन बी रिलेशन ऑफ एनीथिंग. इट कैन बी आइदर ऑफ P, इट कैन बी आइदर ऑफ R, or it can be sometimes it may differ with T also.
ठीक है, बट जनरली आपको पी और आर का ही रिलेशन खोजना पड़ता है। इस आई इससे भी एक क्वेश्चन बनाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सी आई एंड एस आई ऑन ₹8,400 for 2 years in rupees is ₹21 at the same rate of interest per year. Find the rate of interest. ठीक है, तो हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मगर अमाउंट भी है, प्रिंसिपल भी है। ठीक है, सॉरी अमाउंट भी शायद नहीं है, अमाउंट भी नहीं है, मगर हम लोग के पास प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल है तो बेसिकली हम लोग को प्रिंसिपल को लेकर झंझट नहीं करना है। तो वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वो जो रिलेशन मैंने आपको दिखाया उसके थ्रू आप प्रिंसिपल काफ़ी ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मगर यहाँ उसका ज़रूरत नहीं है। और अगर हम लोग प्रिंसिपल दिया हुआ है तो डायरेक्ट प्रिंसिपल से ही बनाए हैं, अदरवाइज़ आप प्रिंसिपल पहले निकाल के फिर इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 ईयर्स का बात किया है तो हम लोग पहले 2 ईयर्स एस आई का निकाल लेंगे। ठीक है, नॉर्मल एस आई का फॉर्मूला पुट करके आर को एज इट इज़ रहने दिए हैं, देखिए 168 आ रहा है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला फॉर 2 ईयर्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो देखिए एज इट इज़ अमाउंट का फॉर्मूला पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 या 2 ईयर्स का, तो आर को एज इट इज़ रहने दिया माइनस पी, तो पी का वैल्यू। अब हम लोग को क्वेश्चन बताता है सी आई माइनस एस आई का वैल्यू इतना है। सी आई फॉर 2 ईयर्स हम लोग निकाल लिए, एस आई फॉर 2 ईयर्स हम लोग निकाल लिए, तो सी आई माइनस एस आई यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, सी आई माइनस एस आई पुट किए, इसको सॉल्व किए। यहाँ देखिए ये होल स्क्वायर में ब्रेक किए हैं इसको, फिर इसको सॉल्व करते गए यहाँ पे कुछ बात को देखिए, ये मेन सॉल्विंग पार्ट, यहाँ ये और ये कट जाएगा, यहाँ ये और ये कट जाएगा, बस ये बचेगा, ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड आएगा, ये 21 4 टाइम्स 425 बार में 100। ठीक है, इसका रेट आर कर तो रेट हमको मिल गया 5%। See this question, calculate the amount and the compound if ₹15,000 is lent for 2 years at the rate for successive years are 8% per annum and 10% per annum respectively. So basically this question's formula is there, but since we did not did with this formula, we are doing here. तो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, जब भी ऐसे सक्सेसिव ईयर्स के लिए देता है तो वो क्या होता है, रेट ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ईयर को हम लोग मेंशन नहीं करते हैं। A is equal to P into 1 plus R1 by 100, 1 plus R2 by 100, अगर मान लीजिए थर्ड रहता है 1 plus R3 by 100। ठीक है, now principal is be given, this time is given, but we don't need it. R1 is 8%, R2 is 10%. So we know the formula. So now we'll be putting this value 8 by 100 here and 10 by 100 here. We will be solving accordingly and we'll get 17,820. So this is very easy question, and also the question speaks about finding the compound interest. So this is how to find the compound interest. You know, compound interest is equal to amount minus principal. So amount minus principal, amount is our, we have taken out 17,820 and minus 15,000, so that will be 2,820. Now a person invests ₹5,000 for 3 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 2 years, their sum amounts to ₹6,272. Calculate the rate of interest per annum, the amount at the end of 30. तो बेसिकली यहाँ हम लोग को देखिए 5,000 क्या हुआ है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल जो है वो हम लोग कहीं भी यूज़ करेंगे। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या हो जाता है, हम लोग को अमाउंट के बारे में बताता है। अमाउंट जो है वो 6,272, रेट हम लोग को पता नहीं, हम लोग को अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है। सेकेंड ईयर अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग रेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने वैसे ही किया, देखिए सेकेंड ईयर के लिए यूज़ किया 2, तो वहाँ से हम लोग प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। और उसके बाद उसी रेट निकाले, रेट 12% मिल गया, और हम उसी रेट को यूज़ करके फिर से अमाउंट का फॉर्मूला वही प्रिंसिपल रेट टाइम यहाँ 3 ईयर्स का हो जाता है, कि हम लोग अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं 30।